Good morning, students. Today we are going to start chapter number 1 of our practice book under the title Articles. So, the first question that comes to my mind is, what are articles? The words a or an and the are called articles. These three words are called articles. Which words? A, an, and the. These are articles. They come or used बिफोर नाउन्स. ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये तीनों वर्ड्स यानी कि ये तीन आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं? बिफोर नाउन, नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल, द सन, एन एनिमल. नाउन नाउन नाउन, तो इनके बिफोर यूज़ हुआ है आर्टिकल. So, how many types of articles are there? There are two types of articles. First is indefinite and second is definite. Indefinite, it's indefinite. And definite. Indefinite article, these three articles are distributed between these two types. In first type there are a and an, and in the second type there is the. Indefinite is a and an, definite is the. Definite, as the name suggests, definite, particularity दे रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ definite है, तो we will use the there where we find particularity or definite thing. So now we are going to study where to use a or an and where to use the. So firstly we are going to read and understand even where to use a and an. First thing you have to keep in your mind that a or an is used with singular nouns. ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होंगे, प्लूरल नाउन के साथ ए एन यूज़ नहीं होते. सो द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड. बिफोर अ वर्ड beginning with a vowel sound, an is used. Okay, so understand here, try to understand it where to use a and where to use an, because these two, both of them are used with singular nouns. So how to differentiate where to use an and where to use a? An is used before vowels. यहाँ पे हम साउंड देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या वो वोवेल्स की साउंड दे रहा है. अगर वोवेल्स की साउंड है, सारे अल्फ़ाबेट्स जो रहते हैं उनमें से these 5 are vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are vowels and rest of the letters are consonants. What we call them? The rest of the alphabets are consonants and these 5 are vowels. तो जो भी नाउन इन 5 लेटर से शुरू होगा इनकी साउंड देगा. A, E, I, O, U इनकी साउंड देगा, उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एन एनिमी, ई इज़ द वोवेल, एनिमी. एन अम्ब्रेला, यू की साउंड होती है, यू की साउंड क्या रहती है, एन अम्ब्रेला. तो यहाँ पे अम्ब्रेला आ रहा है, इट मीन्स इसके साथ एन यूज़ होगा. एन और नाउ here H is used, but H is not a vowel na, so why we use an with H? Because H is silent here. हम इसको pronunciation जो है हमें साउंड देखनी है कि साउंड क्या आती है. H हम यहाँ इसको hover नहीं बोलते, हो से स्टार्ट है, hover नहीं बोलेंगे. H is silent here. H is not pronounced here. The pronunciation of this one is or, O. इस लेटर से जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसकी साउंड जो है वो ओ से शुरू हो रही है. और एच इज साइलेंट,
सो हमने साउंड से देख के ही ए एंड एन जो है वो यूज़ करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिटरमाइन करना है कि व्हाट वी विल राइट हियर. तो और ओ इज वोवेल, एन और. And same with this case, an honest man. H is silent here. And what is the pronunciation? Honest. O. O is a vowel. An honest man. It will be noticed that the words or honest begin with a vowel sound as the initial consonant H is not pronounced or silent here. नोटिस किया है हमने कि और ऑनेस्ट जो हैं उनकी जो फर्स्ट लेटर है वो प्रोनाउंस नहीं किए जा रही, वो साइलेंट है. तो सेकंड लेटर जो है वो वोवल है, तो वोवल की साउंड आ रही है और ऑनेस्ट. दैट्स वाई वी यूज़ एन विद दैम. सो विद कॉन्सोनेंट वी आर गोइंग टू यूज़ अ, ए. नेक्स्ट वी आर टू यूज़ ए. ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. सेम थिंग. एग्जाम्पल, अ बॉय, a woman, a horse, a university, a European, a one-eyed man. A boy. B silent नहीं है, O से pronunciation नहीं है, boy. We use A. A woman. Singular है. A horse. A university. Now, surprisingly, here we use A with U. U is vowel, na? Why we use A with U? Because the university sound is U. U. But vowel में U है, उसकी sound होती है O, umbrella. But यहाँ पे बोला जा रहा है क्या pronunciation है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी. तो दैट्स वाई साउंड नहीं आ रही है यू, अ की साउंड जो यू को बोला जाता है अ, वो साउंड नहीं आ रही है. दैट्स वाई वी यूज़ ए. अ यूरोपियन. क्या साउंड है? ई की साउंड एलिफेंट, एक्सेल. ई की साउंड नहीं है. ई है तो वोवेल है बट ई की साउंड नहीं है. साउंड आ रही है यो. यूरोपियन, यूरोपियन. ई साइलेंट है, यूरोपियन. सो ए इज यूज्ड. अ वन आइड मैन. वन, ओ की साउंड नहीं है. ओ है तो वोवेल है बट इट्स pronunciation इज डब्ल्यू हियर. वो, वन आइड मैन, वो. ओ की pronunciation रहती है ओ, ऑरेंज. बट यहाँ पे वो साउंड आ रहा है. दैट्स वाई वी यूज ए. पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन्स. दिस आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स वाटर, मिल्क, ऑयल एट्सेट्रा. यहाँ पे यूज नहीं होगा. द डेफिनेट आर्टिकल द is used, as the name suggests, definite. We use it with particular when we talk about a particular person or thing or one already referred to. यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम हमें पता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन. सभी लोगों के बाद रैंडमली हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे कि हाँ अरे यार वो, बट उसके बारे में पर्टिकुलर राम, उसके बारे में बात हो रही है. पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में, या कोई ऐसा नाउन जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, दैट इज देयर वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल. एग्जाम्पल, द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट. द बुक, वो बुक जो तुमने मांगी थी वो आउट ऑफ प्रिंट है. कोई पर्टिकुलर बुक की बात हो रही, रैंडमली किसी भी बुक की बात हम नहीं कर रहे. लेट्स गो टू द पार्क. द पार्क, इट मीन्स कोई पर्टिकुलर पार्क है. The girl cried. The girl already talked about, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो वो रो रही थी. The United States of America, पर्टिकुलर है. The is also used when a singular noun is meant to represent a whole class. पूरा जो एक पूरी क्लास को लेके जो रिप्रेजेंट करे उसको भी हम वहाँ पे द यूज़ करते हैं. द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. सिंगल काउ की बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ द काउ.
द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, सिंगल हॉर्स की बात नहीं है, किसी पर्टिकुलर हॉर्स की बात नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ द हॉर्स फैमिली. द कैट लव्स comfort. So here we are going to end our chapter today. In the next class, I'll be with some worksheets, the solved one, and some homework for you. Till then, take care.